Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. As we have started our first unit, that is the human body, and in our body we know that there are different systems which work together to carry out the functions of our body. The first system which we have discussed previously was the nervous system, which was the head of all the system, or we can say which operates the human body, or it detects or reacts according to the stimulus. Now the second system in our body which we are going to deal today is the circulatory system. Now first of all we will go through the text and then we will understand that what the text is saying about, and I will also explain. I will also use Urdu so you will understand better. Now let's move. Now you have to open your book in front of you and you have to come on page number 9. You can see here the circulatory system, which is our second topic. So let's start. The circulatory system is the system that sends oxygen and nutrients around the body to all the cells and takes away waste materials. The main parts of the circulatory system are the heart, blood and blood vessels. The heart pumps blood around the body. The blood travels in tubes called blood vessels. There are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Arteries carry blood away from the heart to other organs and tissues in the body. Veins carry blood to the heart. Capillaries are very small blood vessels that link the veins and the arteries. Now, this is the information about the three constituents of the circulatory system, which are the heart, the blood vessels, and the blood, and the blood vessels and heart. Now, these three all together constitutes our circulatory system. Now this is an intro about these things, and further we will discuss that how our circulatory works. So let's start. You can see in the diagram that this is the diagram of a body, and it's shown that there are some blood vessels surrounding the body or going from one place, from heart to the other organs of the body. And you can see the heart located at the left side of the body, and these are the blood vessels. Now in this diagram the circulatory system is shown. Now let's understand that how the circulatory system works out. सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो. अब ये देखिए, नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारी बॉडी का हेड है. वो हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है, मैसेजेस सेंड करता है. स्टिमुलस या कोई भी चेंज जब डिटेक्ट करता है हमारा नर्वस सिस्टम, तो हमारी बॉडी को बताता है कि आपने इस चेंज के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन देना है. लेकिन हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. एनर्जी, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है आपको खेलने जाना है बाहर, या आपको कोई भी काम करना है, तो हमारे जब आप स्टडी करते हो तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कुछ पहले खा के फिर पढ़ो. अब उससे क्या मुराद होती है कि जब तक बंदे की बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, बंदे की बॉडी तो सही से काम नहीं करेगी. अब इसी तरीके से बॉडी को काम करने के लिए, नर्वस सिस्टम को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी आती है हमारे फूड से जो हम खाते हैं. लेकिन बात यह है कि जो हम फूड खाते हैं वो तो स्टमक में जाता है. अब जब वो स्टमक में जाता है तो वो फिर बाकी के ऑर्गन्स को कैसे मिलता है. नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स दिस एक्शन. इट टेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल दिस it takes the nutrients and sends all to the cells of the body along with the oxygen. एक तो हम सांस लेते हैं. सांस हम क्यों लेते हैं? कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है जो कि हम अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. अब फूड हमने खाया, खा के वो स्टमक में चला गया. अब वहाँ से वो टूटता है स्टमक में. पहले फूड को तोड़ते हैं जिसको हम डाइजेस्ट करना कहते हैं. डाइजेशन सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस पे आ जाते हैं कि जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है. हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं. ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और ये तीनों चीज़ें जो हैं जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखती हैं. ठीक है. अब जब हमारे स्टमक ने उसको तोड़ लिया, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ लिया, अब सवाल ये उठता है कि स्टमक में से जो बाकी ऑर्गन है, जाहिर सी बात है स्टमक है, फिर हार्ट को भी तो चाहिए न्यूट्रिएंट्स काम करने के लिए. हमारा हार्ट 24 घंटे पंप करता रहता है, हार्ट को भी तो चाहिए. हमारे हैंड्स काम करते हैं, हमारे मसल्स काम करते हैं, हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है. अब इसको सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो एनर्जी आए और फिर हमारी बॉडी काम करे. तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है
वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स बनाए होते हैं ना तोड़ के खाने में से स्टमक ने, वो न्यूट्रिएंट्स अपनी जो है वो लेकर पूरी बॉडी के सेल्स को दे के आता है, ब्रेन को भी दे के आता है, हार्ट को भी दे के आता है, हमारे मसल्स को भी दे के आता है, हमारे जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं जो स्टमक से दूर हैं, तो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है हमारी बॉडी में वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक। दूसरी बात, जो एक हो गई फूड, दूसरा है ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती है ना, तो ऑक्सीजन सारी बॉडी पार्ट्स के लिए ज़रूरी है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। अब ये हो गया काम, सर्कुलेटरी का सिस्टम का काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम सेंड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल्स एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल। अब है ये सेकेंड पॉइंट, हमारी बॉडी जब खाना तोड़ती है या फिर कोई भी काम करती है, उस काम के बदले में कोई वेस्ट प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बॉडी के काम का नहीं है या जो बॉडी उसको अपने अंदर में रिटेन नहीं करना चाहती, नहीं रखना चाहती, जैसे कि यूरिया हमारे अंदर बनता है, यूरिक एसिड बनता है, अब हम उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू यूरिन। तो ये जो यूरिया जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके किडनी को कौन देता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके दो काम हैं, एक ये खाना पहुंचाएगा सारे हमारे सेल्स को, ऑक्सीजन पहुंचाएगा हमारे सारे सेल्स को, और दूसरा काम कौन सा है, तीसरा, कि जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बना होगा, वो मटेरियल जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, उसको जो है वो किडनी को देके जाएगा, और फिर हमारी किडनी जो है वो थ्रू यूरिन जो है वो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक। अब आ जाते हैं सेकेंड डायग्राम पे। हमें पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज़ों से बनता है। पहली चीज़ द हार्ट, यू कैन सी इन द पिक्चर हार्ट, ये जो है वो मेन पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्योंकि यही वो बंदा है जो हमारे ब्लड को प्रेशराइज करता है या पंप करता है कि वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हो के आए। अब ठीक, ये हो गया हार्ट एंड द ब्लड ट्रेवल्स। अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड। हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ होगी ना जो उसको कैरी करके लेके जाएगी फूड को, तो वो ब्लड होता है, और ब्लड बना होता है आरबीसीज का। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर लॉट ऑफ आरबीसीज, इनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक। और तीसरी पिक्चर है हमारे पास ये, पहला हार्ट जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसका काम क्या है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। दूसरा ब्लड, जो कि जाहिर सी बात ब्लड होगा तो उसमें सारे खाने जाएंगे, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और फिर हमारी पूरी बॉडी को मिलेंगे। तीसरा वेसल्स, ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में ऐसे ही तो नहीं घूम रहा ना, ब्लड हमारा एक मतलब एक छोटी छोटी पाइप्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके अंदर जो है वो हमारा ब्लड जो है वो पूरा सर्क्यूलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, तीन किस्म की होती हैं। कौन से तीन किस्म की होती हैं? एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। अब ज़रा गौर से आपने यहाँ पे बात सुननी है। एक है आर्टरी, जो ये वाली है हमारी आर्टरी है एंड इट इज़ कलर्ड रेड। यहाँ पे भी रीजंस हैं कि इसको रेड कलर क्यों किया गया है और ब्लू कलर क्यों किया गया है। ठीक। अब ये जो आर्टरी है और उसके बाद हमारे पास है वेन्स, राइट। अब आर्टरी का कलर रेड है और वेन्स का कलर ब्लू यहाँ पे शो किया गया है, और बीच में हमारे पास है कैपिलरीज, ये वाली। अब ये जो एरियाज़ हैं, ये जो आप देख रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे दो एरोस कंबाइन करके यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला जो एरियाज़ है इसको हम कैपिलरी कहते हैं। अब इनका काम क्या है? आर्टरी का क्या काम होता है? आर्टरी जो ब्लड हार्ट पंप करता है, हार्ट से ब्लड लेके जाती है हमारे दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके पास। ठीक है। और फिर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के जो ख़राब ब्लड होता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती या फिर ख़त्म हो गई होती है, वो लेके जाती हैं वेन्स हमारे हार्ट के पास। ठीक है। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड लेके ऑर्गन्स को देना, और वेन का काम क्या है? ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दोबारा हार्ट में डालना ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड कर दे, उसमें ऑक्सीजन भर दे। ठीक। और यहाँ पे तीसरी चीज़ है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं कि इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली जो ब्लड वेसल है वो कैपिलरी होती है। ठीक।
और ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, छोटी छोटी सी। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एरिया जहाँ पे रेडिश ख़त्म होके यहाँ पे ब्लूइश ख़त्म होके बीच में एक छोटी सी आर्टरी बनी हुई, ये कनेक्टिंग पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। ये क्या करती हैं कि जो है इसको कनेक्ट करती हैं आपस में, और फिर ये एक पूरा सिस्टम बनता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑपरेट करता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ. Now in the next video we will talk about that how the heart works and how the circulatory system performs its function. So till then, Allah Hafiz.